Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well and taking preventive measures of COVID-19. Please stay at home and stay safe. Coming to the topic, we are discussing mole calculations. In the previous two lessons, we have discussed mole calculations, and today's lecture we are also discussing mole calculations. We will further proceed mole calculations and attempt and practice different assessments and exercise questions. Okay, there are some formulas. Main four formulas are given that are being used in all the calculations of chapter number 1. First of which is mole is equal to mass over molar mass. And second one is equal to mass is equal to mole into molar mass. These two formulas have previously been discussed in the lesson. Today, we will review these two formulas in the first three questions. And the next two formulas are n is equal to n multiplied by na. And the fourth one is small n is equal to n divided by na. You can note that capital N here represents number of particles. Number of particles means when you are talking about element, it consists of different atoms. So if you say that there is 1 gram of carbon, so अगर आप कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन है आपके पास तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो that will be denoted as N, number of particles present in 5 gram of carbon. So the next is small n represents number of moles and Na represents Avogadro's number. What are Avogadro's numbers? 6.02 into 10 to raise 23. In the third and fourth formula, number of particles and number of moles can be changed. They have different values in different questions, but Avogadro's number will remain same in all, as it's an experimentally determined quantity. 6.02 into 10 to raise 23. It's the value of Avogadro's number and it is denoted as Na. Okay, bache. These are four formulas mainly being used in first chapter. I hope you all have noted the formulas. I'm giving you 2 seconds to note it down. Okay, I think you all have noted. But we will review the previous two topics that has been discussed in the previous lessons through the assessment 1.9. Question number 1 of assessment 1.9 is the molecular formula of a compound used for bleaching here is H2O2. Okay, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. जो हेयर की ब्लीचिंग होती है ना, गर्ल्स और बॉयज आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि वो डिफरेंट कलर्स कराते हैं, तो कलर्स कराने से पहले हेयर्स को ब्लीच किया जाता है, डिसकलर किया जाता है. तो उस डिसकलरिंग के लिए क्या कौन सा कंपाउंड यूज होता है? H2O2. दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन. So the question starts from here. We have to calculate mass of this compound that would contain 2.5 moles. When you read the statement of question, think two things should be clear. What is given mass and what you have to calculate. By reading these statements, you will find that you have to calculate mass of this compound and you are given with 2.5 moles. So before calculating mass, we will calculate molar mass. And that is how we calculate molar mass. मोलर मास को बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है ना, उस फॉर्मूले के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सारों के एटॉमिक मास का सम निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मोलर मास.
आपके पास क्या फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2। हाइड्रोजन का मास कितना है 2 एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 multiply by 2 is equal to 32. 32 plus 34 will be 34. Okay. So सबसे पहला स्टेप हमने क्या कैलकुलेट किया, मोलर मास कैलकुलेट किया, मास हमारा मोलर मास कैलकुलेट किया और फॉर्मूला आपके पास गिवन है। अभी आपने नोट किया है कि जब आपको मोल्स गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं मास, सिंपली मोलर मास को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, दैट आर 2.5 मोल्स एंड यू हैव कैलकुलेटेड मोलर मास. So by multiplying molar mass and number of moles, you will get mass of hydrogen peroxide. Okay, it is basically a preview of the previous topic. आप लोगों ने ये मोल टू मैस एंड मैस टू मोल कैलकुलेशंस पिछले लेसन में डिटेल से पढ़ी हैं। आज ये असेसमेंट कराने का मकसद ये था ताकि आपको प्रीवियस टॉपिक रिवाइज हो जाए। ओके, going to the part B of this question. Number of moles of H2O2 that would exactly weigh 30 gram. Now you have to calculate number of moles and you are given with mass. Mass of H2O2 given है, कितना mass है 30 grams और molar mass अभी आपने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया, that was 34. तो number of mole का क्या फॉर्मूला होता है, number of mole is equal to mass over molar mass. So which mass is given? It is 30 gram. And what is molar mass we have calculated in the previous slide? That is 34 grams. That is 34 grams. So by dividing mass over molar mass, you will get number of moles and that are 0.88 moles. Okay. I hope you have noted the question. Moving to the question number 2 of assessment 1.9. Question number 2 states that a spoon of table salt NaCl contains 12.5 grams of this salt. कि एक टेबल लेना, एक टेबल स्पून लेना है आपने, किसका, सॉल्ट का, जो घरों में हम नमक नहीं इस्तेमाल करते उसका क्या फॉर्मूला होता है NaCl. That is symbolically written as NaCl and named as sodium chloride. Na is symbol of sodium and chlorine is Cl is symbol of chlorine. Okay, तो NaCl को आप क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, और जनरली आप इसको क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट. अब हमारा ये क्वेश्चन टेबल सॉल्ट के मुताबिक है. इसमें करना क्या है हमने, वी आर गिवन विद मैस एंड कितना मैस हमें गिवन है 12.5 ग्राम. कैलकुलेट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मास. वी आर गिवन विद मास दैट इज 12.5 grams. सो व्हाट अबाउट मोलर मास. अब हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मैसेस को ऐड करके, और ये एटॉमिक मैसेस कहाँ से आएंगे, पीरियोडिक टेबल से. आप लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप लोगों ने मेमोराइज कर लें. ठीक है, तो सोडियम उनमें से 11th एलिमेंट है. सो इसका सोडियम का मास क्या है 23 एंड क्लोरीन का मास क्या है 35.5. By adding the mass, we will get molar mass of sodium chloride. Okay, as you know, number of moles can be calculated by dividing mass over molar mass. So we will put here the values of mass and molar mass. What is the value of mass given in the question? Very good. That is 12.5. So we will divide it with molar mass. You have calculated the molar mass. What is the value of molar mass? That is 58.5. So after dividing, we will get the answer and that is 0.21 mole. Okay, clear? इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, जब आपको मास गिवन होता है तो आपने मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं,
सिंपली मैस ओवर मोलर मैस करके। मोलर मैस खुद कैलकुलेट करने हैं, मैस आपको गिवन होगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आई होप यू हैव नोटेड दैट एज वेल। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस assessment is, before the digestive system X-rate, people are required to swallow suspensions of barium sulfate. कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करते हैं ना बेटा, जब हमारे स्टमक के अंदर या हमारे एसोफिगस के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर इधर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें उसका एक्सरे कराना पड़ जाए, ठीक है। तो एक्सरे कराने से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लोगों को, जो इंसान, जो पेशेंट आपका एक्सरे कराने जा रहा है, उसको जो है बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन देंगे कि वो इसको निगल ले, इसको स्वॉलो कर ले, ठीक है। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। हर असेसमेंट में आपके पास एक जनरल इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसके बाद एक क्वेश्चन गिवन होता है। अब ये जो जनरल नॉलेज की या ये जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, इनको भी आप लोगों ने फजूल नहीं समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपके पेपर रिव्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज इनमें से आ जाते हैं या समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरे करने से पहले कौन सा सोल्यूशन फॉलो किया जाता है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? दैट इज बेरियम सल्फेट। Ba is the symbol of barium and SO4 is called as sulfate. Okay, now coming to the numerical, you have to calculate mass of 1 mole of barium sulfate. Simply आपने क्या फाइंड आउट करना है? mass फाइंड आउट करना है। और mass कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? कैसे बेटा mass फाइंड आउट करते होते हैं? इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको ऐड करके। अब पीरियोडिक टेबल आप खोलेंगे, वहां से बेरियम का एटॉमिक मास देखेंगे। What have you find? I'm sure that you have find the mass of barium is 137. Now you will find the mass of sulfur, that is 32. Okay, now coming to oxygen, atomic mass of oxygen is 16. As there are 4 oxygen atoms, so we will multiply 16 with 4. By adding all the figures here, we will get 233 grams. This is simply, this is how we can calculate mass of barium sulfate. ठीक है, यही प्रोसेस यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग देयर एटॉमिक masses प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। यहाँ तक बेटा आपकी असेसमेंट 1.9 कंप्लीट है, ठीक है। और आपकी जो मोल टू मैस एंड मैस टू मोल कैलकुलेशंस हैं वो भी सारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। ओके, now we are going to practice next kind of numericals, that are mole particle calculations. That is the mole particle calculations are related to mole and number of particles. आपको mole given होंगे तो आपने particle find out करने होंगे, या फिर आपको particle given होंगे तो आपको mole find out करने होंगे। Sure? इसके लिए आपके पास 2 formulas हैं। आपको पता है ना कि मोल पार्टिकल से किस तरीके से रिलेटेड होता है? आप लोगों ने स्टडी किया प्रीवियस टॉपिक्स में कि जब आप कहते हैं कि आपके पास कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर आपके पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। Okay, बच्चे? So there are 2 formulas on the right side of the slide are given. First is, जब आपको पार्टिकल नंबर गिवन होंगे ना तो आपने मोल्स कैसे फाइंड आउट करना है? तो पार्टिकल नंबर को आप डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और सेकंड फॉर्मूला इज पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, कि जब आपने किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स फाइंड आउट करने होंगे ना तो आप क्या करेंगे कि उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। यही 2 फॉर्मूलाज हैं, आगे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उनमें यही 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे।
Okay, we will practice assessment 1.10. Question number 1 of 1.10 is, aspirin is a compound that contains carbon, hydrogen, and oxygen. It is used as painkiller. An aspirin tablet contains 1.25 into 10 to the raised 30. How many moles of this compound are present in the tablet? Before coming to the question, let us discuss the general knowledge here. We are given with information of aspirin. What is aspirin? Aspirin is a compound that contains carbon, hydrogen and oxygen. बेटा जो डिस्प्रिन की टैबलेट आप यूज करते हैं या आपके मदर जो है एस्पिरिन की टैबलेट्स यूज करती हैं, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गिवन है कि ये जो है एक कंपाउंड है, ये पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसके अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, ये बना हुआ किस किस से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको क्या गिवन है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए हैं कि एक एस्पिरिन की टैबलेट है ना, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? 1.25 into 10 to raise 30 इतने पार्टिकल्स हैं। आपने क्या बताना है कि मोल कितने हैं उसके अंदर। पीछे तो जितने आपने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उस पे आपने मोल्स कैसे कैलकुलेट किए, मैस गिवन था तो मैस से आपने मोल कैलकुलेट किया है ना, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस करके। अब जो आपकी कैलकुलेशंस है, आपने नेक्स्ट टाइप की कैलकुलेशंस करनी है, मोल टू पार्टिकल और पार्टिकल टू मोल। अब आपको पार्टिकल्स गिवन होंगे तो इससे आपने मोल कैसे फाइंड आउट करना है, उसका आपके पास ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। As you can see, number of particles are given in the questions. कितने number of particles given है? 1.25 into 10 to raise 30. इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? Avogadro's number के साथ. As you know, Avogadro's number is a constant value and that is 6.02 into 10 to raise 23. आपने simply divide किया तो आपके पास आ जाएंगे number of moles. This is how we calculate mole from number of particles. Let us do question number 2 of assessment. A method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involves connecting the iron to a block of a more active metal, such as magnesium. This method is called cathodic protection. How many moles of magnesium are present in 1 billion atoms of magnesium? Okay, dear students, before solving question, let us discuss the general information given in this assessment, and that is कि आप देखते हैं कि जो हमारी शिप्स होती हैं या ऑयल टैंकर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं, लोहे से बने हुए होते हैं। तो आपको पता है कि लोहा जो है उसकी अंदर टेंडेंसी होती है रस्टिंग की, उसको जंग जल्दी लग जाता है। लेकिन जंग लगने के लिए जो है रस्टिंग के लिए हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मॉइस्चर हो, पानी हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन हो। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो देयर आर मोर चांसेस दैट आयरन कैन गेट रस्ट। ठीक है, लेकिन जब आप देखें कि आप जा रहे हैं एक आप ऑयल टैंकर को देख रहे हैं या शिप को देख रहे हैं जिनका काम ही पानी के अंदर होता है, तो अब पानी के अंदर है तो वहां पे तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और आयरन से चीज बनी हुई है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं रस्टिंग के। अब हमने क्या करना है कि अपनी शिप्स को, अपने ऑयल टैंकर्स को रस्टिंग से बचाना है ताकि उनकी सरफेस कोरोड ना हो और खराब ना हो जाए। तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी ऐसे मेटल के साथ जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, क्या किया हमने? आयरन को या शिप को या टैंक को कनेक्ट कर दिया है किसी ऐसे मेटल के साथ जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड दैट इज मैग्नीशियम। तो अब क्या होगा? आयरन कम रिएक्ट करेगा, साथ क्योंकि ऐसी चीज अटैच हो गई है जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रस्टिंग गेट करेगी और आयरन जो है हमारा वो रस्टिंग से बच जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन। आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी था। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है। कैथोडिक प्रोटेक्शन के बाद क्वेश्चन क्या है कि मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट।
क्वेश्चन का पार्ट 1 में आपको क्या समझ आई, आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीशियम के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और गिवन क्या है, एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, मींस हमें पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन है, एंड दैट आर 1 into 10 to raise 9। तो आपको फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, क्या फॉर्मूला था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, आपने वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया, एंड आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। Isn't it too easy? I think it's quite easy। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपली क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होंगे, आपने उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स। ओके, हमारी असेसमेंट 1.10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमने मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40, that is also related to mole particle calculations. So we will do it alongside these calculations we are practicing. So question number 14 states that calculate the number of atoms in each of the following samples। अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, हमने हर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 is calculate number of atoms in 3.4 moles of nitrogen atoms। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था आपका, इस फॉर्मूला से या इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाती हूँ। बेटा जब कहते हैं ना कि एक 1 डजन, आपके पास 1 डजन कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 12 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 2 डजन बनानास हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना, कैसे पता चलेगा कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 24 बनानास। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 3 डजन के अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं। हम कहते हैं ना कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ना, एंड दैट आर 6.02 into 10 to raise 23। तो 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, हम 2 को सिंपली डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं कहूँगी कि 3 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 into 10 to raise 23 के साथ। अगर मैं कहूँ कि 4 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 के साथ। अब इसी तरीके से आप देखेंगे आपको क्वेश्चन है कि 3.4 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि 3.4 को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये था सिंपल वे। आपने ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला स्मॉल पार्टिकल कैलकुलेशन में यूज हुए हैं, एक जो है प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है और दूसरा फॉर्मूला ये वाला है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली मोल विल बी मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। Okay, now coming to the next question, that is calculate number of atoms in 23 grams of sodium। 23 gram is mass of sodium। यहाँ पे बेटा आपको मोल्स गिवन नहीं है, पीछे आपने क्या किया, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दिया ना, आपको मोल गिवन थे। अब तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसे कि आपका एक स्टेप ऐड हो गया। अब आपको मैथ गिवन है, उस मैथ से पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे और उस मोल को आप फिर एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मोल कैलकुलेट कैसे करते होते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। सो कितना मैस है आपके पास गिवन, 23 ग्राम है, और मोलर मैस आपको कैसे पता चलेगा, सोडियम का आप एटॉमिक मैस देखेंगे एंड दैट इज आल्सो 23 ग्राम। So you can see by dividing 23 by 23 we will get 1 mole of sodium। अब 1 मोल के अंदर आपने नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं, तो सिंपली आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, मोल की जगह पे 1 लिखा है आपने, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट की है और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा एंड दैट इज 6.02 into 10 to raise 23 पार्टिकल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, इसको आप एक दफा फिर से देख लें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आसानी हो। जब बेटा आपको मैथ्स गिवन होता है ना, तो मैथ्स से आप पहले मोल कैलकुलेट करेंगे और दूसरे स्टेप में मोल से फिर आप पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Calculate number of atoms in 5 gram of hydrogen atom. आपको दोबारा से क्या गिवन है, मैस गिवन है, और मैस भी कितना गिवन है, 5 ग्राम्स गिवन है. तो आप क्या करेंगे, मैस से पहले फाइंड आउट करेंगे मोल. मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. ओके, मैस कितना है 5, और मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मैस 1 होता है. तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, 5 मोल्स आएगा. अंडरस्टूड. तो अब नंबर ऑफ एटम आपने फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है. मोल की वैल्यू पुट की है, दैट इज 5 मोल, मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रोस नंबर के साथ, एंड नाउ यू कैन सी दैट you have 3.01 into 10 to raise 24 number of atoms present in 5 grams of hydrogen atom. This is how we can calculate mole from particle, particle from mole. ये जो मेथड्स आपने पढ़े हैं, ये आपने क्या क्या सीखा. मोल अगर आपको गिवन हो तो पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर आपको मैस गिवन हो तो मैस से आपने पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ वी विल रिकैप्चुलेट आवर लेसन. इसमें आपकी कुछ जो है फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे. ओके बेटा, यहाँ से आप वीडियो को गौर से देख लें. Number of moles is equal to इस तरीके से number आप of नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट particles, कर सकते which हैं could ना. be atoms or molecules, divided by the Avogadro number. Now let us solve some numericals based on this. Calculate the mass of 3.011 multiplied by 10 to the power 23 number of oxygen atoms. Now we already know the number of moles is equal to number of particles divided by the Avogadro number. So here number of moles is equal to 3.011 multiplied by 10 to the power 23, as this many oxygen atoms are there, and we divide it by Avogadro number, which is 6.022. Okay beta, this is how we calculate number of moles from particle. You can see the formula here. By dividing number of particles with Avogadro's number, you will find out the number of moles. Okay, I think today's topic is clear, and if you have any queries, I'll unmute you. Hello everyone. Okay, आप लोगों ने होम असाइनमेंट में क्या करना है, you have to practice example 1.9, 1.10 and 1.11 along with the questions mentioned above. अभी हमने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं उनके साथ साथ आपने एग्जाम्पल 1.9, 1.10, 1.11 नोटबुक पे करनी है. एंड हम लोग डिसाइड करेंगे जैसे हमने पहले डिसाइड किया. मंडे को आपने होमवर्क चेक कराया, इसी तरह फिर हम एक डेट रखेंगे, उसमें आप लोगों की होम असाइनमेंट्स में चेक करूंगी. Okay, I think you have enjoyed the lesson, you have enjoyed the calculations, mathematics along with chemistry. See you tomorrow. Allah Hafiz. Ask your queries in the next section. Allah Hafiz.